Hello dear students of class 8, how are you all student? I am your science teacher DPS sir from LPM Public School Gola Bazar Gorakhpur. Dear student, as you know, chapter 11 that is friction is already under process. So that I have already explained you in this topic today. Once again I will start doing the revision work of the types of friction. Friction, static friction and kinetic friction. So in my previous video I have explained you about the static friction. What is static friction, dear student? Static friction is a friction which comes into play between two solid objects where one object tends to move over the other surface but the object doesn't move. For example, student, static friction can prevent one from sliding. Student, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बता दें. जैसे सपोज दैट एक कोई स्लोपिंग सरफेस है जो कि ये फिक्स है, ये बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है, पर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉक्स, वो इस स्लोपिंग सरफेस पे मूव कर रहा है. दैट मीन्स ऐसे दो ऑब्जेक्ट जो आपस में टच में है पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स है, वो उसमें कोई मोशन नहीं है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उस पर स्लाइड कर रहा है. तो उसकी स्लाइडिंग करने के कारण वो जो फिक्स ऑब्जेक्ट है और जो स्लाइड कर रहा है उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है जो उस स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट को रोकने का प्रयास कर रहा है, और वहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले between two objects where one object tends to move over the other surface but the object doesn't move. For example, static frictions can prevent you from sliding down as inclined plane. So dear student, measuring frictional force. Take a wooden block with a hook. You see here, this is a wooden block and there is a hook here, and that hook has been attached with the cylinder, that is the spring balance. So take a wooden block provided with a hook, place this wooden block on a table, attach the sensitive spring balance to its hook. Now pull the spring balance gently by applying a force. स्टूडेंट स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है जिसके आगे हुक लगा हुआ है और उस हुक से एक स्प्रिंग बैलेंस को लगा दिया गया है. जब उस स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से उस वुडन ब्लॉक को खींचा जाएगा, पुल किया जाएगा, तो वो वुडन बॉक्स की जो वेट होगी उस वेट से जब अधिक फोर्स हम लगाएंगे तब वो वुडन ब्लॉक मूव कर पाएगा, और कितना फोर्स लगाया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू वेट उस स्प्रिंग बैलेंस में शो होगा. Pull the spring balance gently by applying a small force. You will notice that the small force do not move that block. That is, it is not sufficient. यानी कि वो हल्का सा अगर हम बल लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को नहीं मूव कर पा रहे हैं क्योंकि वो लगाया हुआ फोर्स, हल्का लगाया हुआ फोर्स उस ब्लॉक के वेट से कम है. और इस प्रकार अगर हम चाहते हैं ब्लॉक को मूव करना तो ब्लॉक के वेट से अधिक फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. That is, it is not sufficient to overcome the force of friction. Gradually increase the force on the block until it just tends to move or slips on the surface. Gradually increase the force on the block. अब फोर्स को थोड़ा बढ़ाइए on the block until it just tends to move or slip on the surface. जब उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया गया फोर्स को आप बढ़ाएंगे तो वो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. यानी कि जब तक उस बॉडी के वेट से कम या उसके बराबर फोर्स लगाया तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, पर उसके वेट से कहीं ज़्यादा, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर फोर्स हुआ तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. यू विल नोटिस दैट द सर्टेन मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गेट द ब्लॉक मूविंग. वह थोड़ा सा जो फोर्स हमने अधिक लगाया जिससे वो ब्लॉक मूव करने लगा, the force we exert on the making the wooden block just tends to move is equal to the force of friction, that is static friction.
और वह ऑब्जेक्ट को मूव करने से जो फोर्स रोक रहा है, वहाँ पर उस फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी उस फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे तभी उस ऑब्जेक्ट को मूव करा पाएंगे. Note the reading of the static friction shown by the spring balance. Now student, next is that limiting friction. Limiting friction is the maximum value of static friction. जो अधिकतम हम static friction वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोक रहा है, और जो अधिकतम हम फोर्स लगाएंगे उस अपोजिंग फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोक रहा है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज इंक्रीज स्लोली, जब बाहरी बल को हम बढ़ा देंगे, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो इंक्रीज. तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा. एंड अ स्टेज कम्स, और एक ऐसी अवस्था आएगी, समय आएगा, व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, तब वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी. यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते रहें, खींचते रहें, और वो तब जाके मूव करेगी जब हमारे द्वारा लगाए गए बल उस फ्रिक्शन फोर्स से अगर अधिक हुए, तभी वो जाके मूव करेगा. अन्यथा जब तक उस स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शंस के बराबर हमारा बल लगेगा, तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? वो फ्रिक्शन जो बॉडी को आगे मूव करने से रोक रही है, उस फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर उस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन से कहीं ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके, तो वो फोर्स जो उस बॉडी को रोक रहा है, लिमिट को हमें क्रॉस करेंगे, उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से बढ़ के हम अपना फोर्स लगाएंगे, तब जाके वो ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर पाएगा. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज जस्ट as to verge of sliding on the surface is called the limiting friction or limiting frictional force or limiting friction. Now dear student, kinetic friction. What do you mean by kinetic friction? Kinetic friction takes place when two objects are moving against each other. जब कोई दो वस्तु आपस में मूव कर रही है, when two objects are moving against each other, pushing the desk from one corner to another. An example of kinetic friction means kinetic friction takes place when two objects, जब कोई दो objects are moving against each other, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव कर रही है. अभी तक तो हमने ये बताया कि एक ऑब्जेक्ट मूव करेगी, दूसरा ऑब्जेक्ट स्थिर में रहेगा, स्टेशनरी रहेगा. यहाँ पे काइनेटिक में क्या है? दोनों मूव कर रहा है. सपोज दैट, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट स्लाइडिंग फ्रिक्शन. मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अगेंस्ट ईच अदर. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव कर रही है. पुशिंग द डेस्क फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, ये एग्जाम्पल है काइनेटिक फ्रिक्शन का. काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ टू टाइप. काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं. वन इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड अदर इज द रोलिंग फ्रिक्शन. So dear student, now come to know about the sliding friction. The opposing force that come into play when one body is actually sliding over the surface of the other body. So the opposing force, वह विपरीत दिशा में जो फोर्स लग रहा है, the opposing force that come into play, जो एक्ट कर रहा है जब एक बॉडी एक्चुअली दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है ओवर द सर्फेस ऑफ द अदर बॉडी, और वहाँ पे जो उस फ्रिक्शन को क्रिएट हो रहा है उस स्लाइडिंग बॉडी को रोकने के लिए, वो फ्रिक्शन को हम कहेंगे स्टूडेंट स्लाइडिंग फ्रिक्शन. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ कोस्टर इज मूव ओवर द फ्लैट सरफेस ऑफ टेबल. अगर फ्लैट सरफेस ऑफ टेबल के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कराया जाए, तो उस स्लाइडिंग, उस फिसलते हुए बॉडी की और उस सरफेस के बीच में जो उस फिसलते हुए बॉडी को अपोजिट साइड से रोकने का प्रयास जो फोर्स कर रहा है, ओके, उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके स्टूडेंट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, चूंकि फर्श स्मूथ रहेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक समतल जमीन पे हो रहा है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक स्लोपिंग सरफेस पे हो रहा है. तो स्लोपिंग सरफेस अपने आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा, क्योंकि वो स्लोपिंग सरफेस है. इसलिए स्लोपिंग सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो कम होती है
than in compared to the static friction. Okay, student. Now, रोलिंग फ्रिक्शन. व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? अगर कोई ऑब्जेक्ट के नीचे पहिया या कोई रोलर लगा हुआ है और वो मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को रोलिंग करने से जिस सरफेस पे वो टच में है, उसका पहिया जिस पे वो मूव कर रहा है, उस पहिए जब जिस सरफेस पे मूव कर रहा है उसके अपोजिंग में, उस रोलर के अपोजिंग में जो फोर्स यहाँ लग रहा है उस रोलिंग करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, ओके डियर स्टूडेंट, उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन. मीन्स द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one object is actually rolling over the surface of the other object is called the rolling friction. Once again student, the opposing force that come into play when one object is actually rolling over the surface, जब एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है दूसरे सरफेस पे, उसे कहते हैं हम क्या? रोलिंग फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट, रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. रोलिंग से फ्रिक्शन कम. रोलिंग देखो, जितना अधिक स्टैटिक में लगता है, जितना उससे थोड़ा कम स्लाइडिंग में लगता है, उससे और ज़्यादा कम फ्रिक्शन रोलिंग में. अगर कोई हेवी बॉक्स, अगर हम एक समतल प्लेन पे उसे घसीट रहे हैं, तो उस समतल बॉक्स को, पेटी को, जो हम एक प्लेन सरफेस पे घसीट रहे हैं, तो उसको खींचने में जो उसके अपोजिंग फोर्स लगेगा उस बॉक्स को रोकने के लिए, वहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. पर वही सरफेस अगर थोड़ा स्लोप में रहता, वही प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस ना होके वही सरफेस अगर थोड़ा स्लोप में रहता और उस पे वह बॉक्स स्लाइड करता, तो वहाँ पे जो फोर्स होता, फ्रिक्शनल फोर्स होता, वो स्टैटिक से थोड़ा कम होगा और उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. पर वहीं पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अगर उसी बॉक्स के नीचे हम पहिया लगा दें, तो वो और इजीली मूव करेगा, वहाँ पे फ्रिक्शन और कम हो जाएगा. यानी रोलिंग में फ्रिक्शन और कम हो जाता है देन इन कंपेयर टू द स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Rolling reduces the friction. A ball or a wheel of a car or cycle rolling over the another is example of the rolling friction. On other hand, rolling friction is generally lesser than the sliding friction. Rolling friction जो होता है वो sliding friction से कम होता है. So dear student, place a wooden ball block on a table. एक wooden block को टेबल पर रखिए. अगर उसको हम ऐसे नॉर्मल घसीटेंगे तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा. पर अगर उसी बॉक्स के नीचे हम कोई गोल नुमा वस्तु, सपोज दैट हम पेंसिल ही डाल दिए, 3 पेंसिल डाल दिए, अब उसको हम स्प्रिंग बैलेंस लगा के चेक करें, खींचें, तो देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस में उस समय जब मैं पेंसिल, नीचे पेंसिल नहीं था, उस प्लेन फिगर जो मैं सबसे पहले बताया था, इस फिगर में क्योंकि इसका सारा सरफेस जो है उस सरफेस को टच किए हुए है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि ज़्यादा होगा. पर वही अगर नीचे पेंसिल लगा दिया जाए तो इस केस में अब वो ऑब्जेक्ट रोल करेगा, मीन्स लुढ़केगा, और बहुत कम फ्रिक्शन वहाँ पे क्रिएट होगा और बहुत कम फोर्स में वो ऑब्जेक्ट वो मूव करेगा. सो place a wooden table block on the table and try to pull it with the help of a spring balance. Now place the 3 or 4 pencils cylindrical roller parallel to each other as shown in figure. Place the wooden block over the pencil. Now pull the block gently with the help of the spring balance until the wooden block just starts sliding over the pencil. Here you will see that in spring balance the force is very less that has taken, as because rolling friction is very less, so there is very less application of force and the body will easily move. You will find that it is easier to move a block now. The force required is always less than the sliding friction of the same body. This explains why the sliding in a machine is replaced by a rolling by the use of ball bearing, wheels and rollers. Thus it is easier to roll than to slide. तो रोलिंग बहुत आसान होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई लैंग्वेज फिटेड एंड द रोलर्स इज कन्वीनियंट टू पुल. इस प्रकार रोलर लगा देने से कोई चीज़ आसानी से खिंच सकता है स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द फ्रिक्शन इन फ्लूइड. पानी में
भी अगर आप पानी में कोई वस्तु मूव कर रहा है तो पानी भी अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए। उसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस विच कैन फ्लो। फ्लूइड वो वस्तुएं होती हैं, सब्सटेंस होता है जो बह सकता है। इट डजेंट पोजेस डिफरेंट शेप, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। एयर एंड वाटर बोथ आर फ्लूइड, हवा और पानी दोनों बहने वाली चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू एयर, जो वस्तुएं हवा के थ्रू ट्रैवल कर रही है, एंड वाटर के एक्सपीरियंस फ्लूइड फ्रिक्शन। वाट तो हवा में या जल के माध्यम से जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ कार, जैसे कि किसी कार का मूवमेंट, ओके डियर स्टूडेंट, किसी कार का मूवमेंट एंड एरोप्लेन्स इज अपोज्ड। कार का मूवमेंट, जैसे फर्श पे कार चल रहा है तो कार के अपोजिंग में उसको रोकने के लिए फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है। एरोप्लेन जो हवा में उड़ रही है वहाँ पे भी, हवाओं में भी उसके अपोजिंग फोर्स लग रहे होंगे। तो एयर में और वाटर में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। Similar to sliding friction and rolling friction, fluid friction also acts against the motion. जैसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मूविंग बॉडी को रोक रहा है फ्रिक्शन, रोलिंग में भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का प्रयास कर रहा है, वैसे ही फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जो एयर में या वाटर के माध्यम से मूव कर रहा है वहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, किसी such object that is moving in through the air or through the water, there the friction that is acting is called the fluid friction. फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो धीमा हो जाता है, ट्रैवलिंग थ्रू द एयर एंड वाटर। नाउ इट एड्स टू द अमाउंट ऑफ फ्यूल नीडेड बाय द कार, aircraft, ship, and motorized boats and submarines. It adds the amount of fuel. Okay, it adds the amount of fuel needed by the car. और इसके माध्यम से कार में, एयरक्राफ्ट में, शिप में, मोटराइज बोट में, सबमरीन्स में उसी के अकॉर्डिंग फ्यूल पड़ता है। जितना अधिक उसमें एनर्जी लॉस होता है उस ऑब्जेक्ट को उन फ्रिक्शन से, अगर फ्रिक्शन को क्रॉस करते हुए आगे मूव करना है तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी, और ज़्यादा एनर्जी खर्च का मतलब होता है ज़्यादा फ्यूल का लगना। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज दैट ड्रैग। ड्रैग इज द नेम गिवन टू द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the fluid। जैसे कि अभी मैं बताया स्टूडेंट कि वो फ्रिक्शन जो हवाओं में और पानी में एक्ट हो रहा है उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं ड्रैग। यानी ड्रैग उस फ्रिक्शनल फोर्स का नाम है जो वाटर और एयर में एप्लीकेबल है। यानी एयर वाला या पानी वाला फ्रिक्शन को कहते हैं ड्रैग। So frictional force on an object is in fluid depend upon the object's speed with respect to fluid. Higher the object speed, greater will be the frictional force. जितना अधिक उस ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा with respect to fluid, higher the object speed, greater will be the frictional force. The shape of the object, larger the size of an object moving through the fluid, greater will be the frictional force. Means larger the size of the object, अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज ज़्यादा बड़ा है तो फिर उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा, चाहे वो फ्लूइड फ्रिक्शन हो या जो भी हो, मतलब वो फ्रिक्शन जो है उसके ऊपर ज़्यादा एक्ट करेगा और विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ नेचर ऑफ फ्लूइड, हायर द विस्कोसिटी, अगर आप हायर द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, अगर लिक्विड के माध्यम से कोई जाए तो अगर लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उतना अधिक उस पर मीन्स उसको रोकने का प्रयास करेगा। ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड इट। हायर द विस्कोसिटी, जितना वो लिक्विड गाढ़ा होगा, जिस जिस लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जितना वो गाढ़ा होगा उतना अधिक समय लगेगा उनको मूव करने में। ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। नाउ ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू फ्लूइड हैव एन, फ्लूइड का मतलब यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में मूव कर रहा है या पानी मूव कर रहा है तो वहाँ पे एक फोर्स एक्ट करता है उसको रोकने के लिए, दैट इज कॉल्ड द ड्रैग। ओके, ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू फ्लूइड हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन, और जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के माध्यम से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड हैव टू ओवरकम, उसको उस फ्रिक्शन से उभर के आना होगा, तो उसके लिए अधिक अधिक फोर्स लगना होगा, एक्टिंग ऑन देम बिकॉज ऑफ विच दे लूज एनर्जी।
क्योंकि इसी के कारण वो एनर्जी लूज कर देते हैं। हैंस टू मिनिमाइज दिस, इसको कम करने के लिए ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड, जो फ्लूइड से मूव के अंदर मूव कर रहा, चाहे पानी हो चाहे हवा हो, उसके ऊपर भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। और वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाता तो शायद वो ऑब्जेक्ट ना तो हवा मूव कर पाता ना तो पानी मूव कर पाता। So because of they lose energy, hence the minimize this objects can give this vessel shape. So dear student, today I have explained about the different types of friction force. Okay, fluid frictions, force, rolling frictions that I will explain on the next day. Today I have explained about sliding friction and I have also explained about the static friction, limiting friction. So today up to here only. Dear student, meet you with the next lecture video on about the rolling friction. So thank you student, have a nice day. चला दो, चलाना था। हाँ?